أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی ہم لوگ تجوید کی ہسٹری کے بارے میں سیشنز کر رہے تھے اور آج انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو وائنڈ اپ کریں. ہم سمرائز کریں گے کہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس کا نچوڑ کیا تھا. تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے جو تجوید تھی اس کا آغاز کس علماء نے کیا، کن علماء کرام نے شروع کیا. تو سب سے پہلے نام آتا ہے ابو مزاحم الحقانی کا. ابو مزاحم، اس کا نام آپ نے، ان کا نام آپ نے کوشش کرنے کے ذہن نشی کر لیں، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے سائنس آف تجوید کی اہمیت کو محسوس کیا اور اس کے اوپر کام باقاعدہ سے شروع کیا اور اس کو ایک علیحدہ سے سبجیکٹ لے کے چلے ہیں. ابو مزاحم الحقانی، اور ان کی ایک پوئم ہے الحقانیہ. الحقانیہ ان کے نام سے منسوب ہے. تو اس میں اگر آپ جب آپ کوئی کورس کریں نا، الحقانیہ کا علیحدہ سے ایک کورس آفر ہوتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ اسپرچویلٹی پائی جاتی ہے. تجوید کے احکامات تو ہیں ہی، قواعد تو ہیں ہی، لیکن اس میں اسپرچویلٹی بہت پائی جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم تجوید کو اسپرچولی ڈیل کر سکتے ہیں. تو ابو مزاحم الحقانی. پھر آ جاتا ہے دوسرا نام ابو اسود الدوالی کا. ابو اسود الدوالی یہ وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے فتح، کسرہ اور دمہ، اس کو کہتے ہیں نقط الاعراب. ابو اسود الدوالی، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا، ایک تو یہ گرامیرین تھے، زبان پر بہت عبور تھا، اور جیسے جیسے ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ زبان جو نان عربس ہیں ان کی آسانی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اعراب لگائے. الدوالی، ابو اسود الدوالی، ٹھیک ہے. انہوں نے نقط الاعراب پہ کام کیا. فار ایگزامپل ہمارے پاس تھے الف با تا سا. تو آپ کو پتہ ہے پہلے تو یہ ایک ہی طرح کے دکھتے تھے، یہ ایک ہی شکل تھی ان سب کی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا، فتحہ ہے تو میں علیحدہ سے کلر یوز کرتی ہوں. فتحہ ہے تو اس کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا، کسرہ ہے تو اس کے نیچے نقطہ لگا دیا. اگر وہ ہوگا ضمہ تو اس کے آگے. تو یہ نقطے انہوں نے لگا دیے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ اچھا آواز کو اوپر لے کے جانا ہے، نیچے لے کے آنا ہے، آ ای او کی آواز نکالنی ہے. اسی طرح تنوین کے لیے 2 نقطے کر دیے انہوں نے. پھر جیسے جیسے آگے مزید ترقی ہوتی گئی زبان میں، تو نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں نصر بن عاصم. نصر بن عاصم، ان کا بھی نام آپ نے یاد رکھنا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ جو ایک طرح کے حروف تھے نا، جو ایک طرح سے دکھتے تھے، ان کی گروپنگ کر دی تھی، ٹھیک ہے. جو حروف ایک طرح کے دکھتے تھے ان کی گروپنگ کی، اور چونکہ اگین نان عربس کے لیے ان کا پہچاننا مشکل تھا، تو انہوں نے کیا کیا، ان کی گروپنگ کر کے ان کے نیچے ان کے نقاط لگا دیے. فار ایگزامپل با تھا تو با کے نیچے ایک نقطہ آ گیا. تا تھا تو اس کے اوپر 2 نقطے آ گئے. سا تھا تو اس کے بھی اوپر 3 نقطے آ گئے. اب آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ ابو اسود الدوالی نے جو نقاط لگائے تھے وہ بھی نقطے ہیں اور یہ بھی نقطے ہیں. اب ہم جیسوں کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ با کا نقطہ ہے، یہ فتحہ کا ہے، اور یہ تا کے 2 نقطے ہیں، یا یہ تا کے نیچے ایک جو نقطہ ہے. یہ مکس اپ ہو رہا تھا، یہ نقاط کی وجہ سے نا یہ دونوں چیزیں مکس اپ ہو رہی تھیں. تو پھر جو تیسرا کردار ہے اگین، انہوں نے یہ کنفیوژن اس طرح سے دور کی، اور ان کا نام ہے ابو عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراہیدی. الفراہیدی کے نام سے زیادہ جانے جاتے ہیں کیونکہ نام کافی لمبا ہے. تو ابو عبد الرحمن الخلیل الفراہیدی، انہوں نے کیا کیا، یہ کنفیوژن دور کی. اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ آج موجودہ دور میں ہم لوگ جو فتح کسرہ دمہ پڑھتے ہیں، اصل میں انہیں کی ایجاد ہے. ابو عبد الرحمن الخلیل الفراہیدی. تو یہ 4 نام آپ نے ذہن نشین کر لینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سے.
इसी ऑर्डर में करेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद रहेगा। इनके काम के साथ इनके नाम आपको फिर याद करना मुश्किल नहीं रहेगा। फ़राहिदी। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया, ये कन्फ्यूजन को इस तरह से दूर किया कि जो बा था, बा तासा और इसका फ़तह कसरा दमा, उसको इन्होंने स्लांट दे दिया। बा का नुक्ता रहने दिया और फ़तह को स्लांट की शक्ल में एक लाइन लगा दी, इस तरह से करके। और इसी तरह कसरा मैं यहाँ पे लिख देती, बल्कि नीचे लिखूँगी ताकि आपके लिए आसानी रहे। अच्छा जी, तो ता के नीचे एक नुक्ता सॉरी कसरा आ जाएगा और ये दम आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये फ़तहा, कसरा और दम्मा की शेप्स ये किस तरह से आईं। तो अबू अब्दुर्रहमान खलील बिन अहमद अल-फ़राहिदी ने किस चीज़ से इंस्पायर होके फ़तह, कसरा, दम्मा की ये शेप थी। असल में जब इन्होंने गौर व फ़िक्र किया तो इन्होंने अलिफ़ पे गौर किया कि फ़तह को स्ट्रेच करने वाला क्या है, वो अलिफ़ है। और कसरा को स्ट्रेच करने वाला क्या है, वो या है। तो या की ये वाली शेप, अलिफ की ये वाली, या की ये और ये वाव था, ठीक है? और वाव को क्या चीज़ स्ट्रेच करती है? दमा। तो उन्होंने इन्हीं से ही इंस्पायर होके ना, तो अलिफ को थोड़ा-सा टेढ़ा कर दिया, ठीक है? ये अलिफ ही था और इसको टेढ़ा किया और फ़तहा दे दिया। और जो या था, इसका नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला छोड़ के ये वाला हिस्सा, इसका इस्तेमाल किया और इनको स्लांट दे दिया, तो ये कसरा हो गया। और इसी वाव से ही इसको सीधा करके बम्मा ये वाली शेप दे दी। तो क्या कहा जाता है? इसको मदर कहा जाता है। ये मदर्स हैं, ठीक है? ये मदर्स हैं और ये इनके बेबीज़ हैं, ठीक है? आज भी इसको इसी तरह से लिया जाता है बिकॉज़ दीज़ बेबीज़ केम फ्रॉम देयर मदर्स, ठीक है? हम कहेंगे अम, फ़तहा इज़ अ चाइल्ड ऑफ द मदर अलिफ, कसरा इज़ अ चाइल्ड ऑफ द मदर या, एंड दम्मा इज़ अ चाइल्ड ऑफ द मदर वाव। और हमेशा ये इन्हीं कॉम्बिनेशंस के साथ ही आता है। फ़तहा इज़ ऑलवेज़ स्ट्रेच्ड बाय अलिफ और इसी तरह कसरा हमेशा या स्ट्रेच करता है और इसी तरह दम्मा इस चीज़ को कौन स्ट्रेच करेगा? वाव। हम इसको नेचुरल मद, मद असली, मद तबई इसीलिए कहते हैं। और इसी के साथ हमारा जो हिस्ट्री थी इसकी इसको फ़रोग़ किस तरह से मिला, इस टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह ताला हम इसका इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे इमाम हफ्स की जो सनद है वो क्या है। जब कुरान पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, तो जिस तरीके से नाज़िल हुआ, उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा कराम को सिखा दिया, जिनके नाम हैं ज़ैद बिन साबित, उबई बिन कअब, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अली बिन अबी तालिब एंड उस्मान बिन अफ़्फ़ान। इन 5 सहाबी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज़ में, जिन 7 अहरूफ में कुरान पाक नाज़िल हुआ, इनको आगे सिखा दिया। आगे इन सहाबा कराम ने अपने ताबी जो उनके अंडर थे, उनके स्टूडेंट्स थे, उनको सिखा दिया। तो अब्दुल्ला बिन हबीब अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी, ये नाम भी बहुत मशहूर है, अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी के नाम से। तो ये ताबई हैं, इन्होंने इन पाँचों सहाबा कराम से वो कुरान पाक सीखा। दूसरी तरफ ज़िर बिन हुबैश, इन्होंने इन 3 सहाबा कराम से कुरान पाक सीखा। ये तीनों नाम यही हैं इन पाँचों में से, अब्दुल्ला बिन मसूद, अली बिन तालिब, अली बिन अबी तालिब और उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हमारे पास 2 नाम आ गए, अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी और ज़िर बिन हुबैश, ठीक है? इन दोनों ने सहाबा कराम से सारा कुरान सीखा जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। अब इन दोनों से इनको हम कहेंगे अ, ये ताबई हैं और इनके आगे इनका स्टूडेंट आसिम बिन अबी नुजूद, आसिम बिन अबी नुजूद, ये वो हैं, इनको कारी कहा जाता है। तो हमारे पास ना इस तरह के इसी लिस्ट में 10 कारी हैं, ठीक है? इनको कुर्रा कहा जाता है, 10 टाइप्स ऑफ कुर्रा। और जो कुरान पाक नाज़िल हुआ था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्होंने सहाबा किराम को सिखाया, सहाबा किराम ने आगे इन लोगों को सिखाया, इन्होंने आगे फिर
10 قُर्रा को सिखाया जो बहुत मशहूर है, जिनकी किरात बहुत मशहूर है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उन उन किरात को सीखने में लगा दी थी, सर्व कर दी थी, जिसकी वजह से फिर आगे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया और उनके नाम से वो किरात जो है वो मंसूब की जाती है। अच्छा, आसिम यहाँ पे एक ही कारी का ज़िक्र है क्योंकि ये हम सिर्फ़ इमाम हफ्स की सनद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिहाज़ा एक ही कारी का ज़िक्र है। तो आसिम बिन अबी नुजूद ने आगे अपने 2 स्टूडेंट्स को सिखाया था, ठीक है? जब जो भी कारी था ना, वो खुद सीख के अपने आगे 2 स्टूडेंट्स को सिखाता था, तो हर कारी का आगे 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो इमाम हफ्स कारी हैं और इनके आगे जो 2 स्टूडेंट्स हैं, उनमें नंबर 1 हफ्स बिन सुलेमान और दूसरा शुअबा बिन अय्याश, ये 2 हैं। इन दोनों को अलग-अलग तरीके से इन्होंने किरात सिखाई। जो किरात हफ्स बिन सुलेमान ने सीखी वो शुअबा बिन अय्याश से मुख्तलिफ थी। जो शुअबा बिन अय्याश ने सीखी वो हफ्स बिन सुलेमान से मुख्तलिफ थी। तो अब आप देखें कि एक दफ़ा क्या हुआ कि हफ्स बिन सुलेमान शुअबा बिन अय्याश से कुछ तिलावत कर रहे थे और शुअबा बिन अय्याश ने जब तिलावत की तो हफ्स बिन सुलेमान कहने लगे कि इस तरह से तो इन दोनों में मुकालमा हुआ कि इन दोनों में से एक ने कहा कि नहीं इस तरह से तो मुझे नहीं सिखाया गया। तो वो आसिम बिन अबी नुजूद के पास गए, पूछा कि देखें कि ये जो मेरा दूसरा साथी है वो थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से पढ़ा है, तो फिर आसिम बिन अबी नजूद ने उनको क्लियर किया कि मैंने एक को उस तरह से सिखाया है जो मैंने अली बिन अबी तालिब से सीखा है और दूसरे को मैंने उस तरह सिखाया है जो मैंने अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखा है। तो इस लिहाज से इन दोनों में डिफरेंस था। अच्छा, हफ्स बिन सुलेमान ने आगे फिर अ, इनके भी फिर आगे 2 स्टूडेंट्स थे। अच्छा, आसिम बिन अबी नजूद को कारी कहा जाता है और हफ्स बिन सुलेमान और शुअबा बिन अय्याश को रावी कहा जाता है। देखें ये कारी हैं और ये रावी हैं, ठीक है? ये इनका टाइटल है। अच्छा, हफ्स बिन सुलेमान ने आगे 2 मज़ीद अपने स्टूडेंट्स को सिखाया जिनमें उबैद बिन सबाह और उम्र बिन सबाह हैं। ये दोनों के सरनेम एक जैसे हैं सबाह, सबाह, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि ये भाई नहीं थे, अलहदा थे, लेकिन इनके सरनेम बाय चांस मिलते हैं। अच्छा जी, उबैद बिन सबाह ने आगे मज़ीद सिखाया अशनानी को और फिर हाशमी को। हाशमी ने आगे अबू उम्र अद्दानी, अबू दाऊद और अबू अल हसन को सिखाया। अब इनसे आगे चलें तो अबू कासिम बिन फ़िरूह शातिबी, शातिबी का नाम आपने सुना होगा, शातिबी के नाम से ये मशहूर हैं और इनको तरीक़ कहा जाता है। इनको तरीक़ कहा जाता है। तो हमारे पास क्या आया? क़ारी, क़ारी के बाद इनसे सीखने वाले को रावी कहा जाता है और उस रावी के आगे जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको तुरूक कहा जाता है, ठीक है? तुरूक। तो हम जो सीखते हैं वो सीखते हैं हफ्स बिन आसिम मिन तरीक़ अश-शातिबी और हफ्स बिन आसिम की जो रिवायत है ना, जो इन्होंने सीखा उसको रिवायत कहा जाता है। जो हफ्स बिन सुलेमान ने आसिम बिन अबी नजूद से सीखा, हम इस उस रिवायत को इस तरह से नाम देते हैं हफ्स बिन आसिम। हफ्स ने वो रिवायत जो सीखी आसिम से, ठीक है? हफ्स अन आसिम मिन तरीक़ अश-शातिबी, ठीक है? तरीक़ा वो वाला जो शातिबी रहमहुल्लाह ने सिखाया हमें। तो एक से ज़ायद तुर्क हो सकते हैं, ठीक है? एक से ज़ायद तुर्क हो सकते हैं। ये अब आप जब मज़ीद डिटेल में सीखेंगे तो आपको समझ आएगी। लेकिन इतना जान लेना काफ़ी था आज के लेसन के लिए। तो अगर कोई आपका सवाल हो तो इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं, वरना हम आज के लेसन को यहीं पे इंशाल्लाह ताला वाइंड अप करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।